Hello student. From this video we study about kingdom Plantae. So kingdom Plantae, it is a group of organism. Which kind of organism? Which are multicellular photosynthetic eukaryote. Kingdom is a group. It is a highest category of classification. And when we say kingdom Plantae, that means it is a group of plant. जितने भी plants ये अर्थ के ऊपर है, सारे एक ग्रुप के अंदर स्टडी किए जाते हैं and that group is called kingdom. Plant means multicellular photosynthetic eukaryotes. कुछ primitive members है, वो यूनिसेल्युलर भी है, लेकिन ज्यादातर प्लांट जो है वो मल्टी सेल्यूलर है. दे आर फोटोसिंथेटिक एंड दैट्स वाई दिस किंगडम इज डोमिनेटेड बाय ऑटोट्रॉप्स. ये प्रोड्यूसर है फूड एनर्जी के इन द इकोसिस्टम. नाउ दिस किंगडम इज डोमिनेटेड बाय ऑटोट्रॉप, बट इट ऑल्सो इंक्लूड some semi-autotrophic members. The insectivorous plants like Venus flytrap, pitcher plant, as well as it also include heterotrophic parasitic members like Cuscuta. तो ये जो members है, majority of members are multicellular photosynthetic eukaryotes because their cell contain chlorophyll and that's why they become producer. As I said, जैसे मैंने कहा कि ये एक बड़ा सा ग्रुप है जिसके अंदर सारे अर्थ के ऊपर जितने भी प्लांट्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है. तो उनके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस भी है. देन टू स्टडी प्लांट्स इन डिटेल फर्दर दे आर क्लासिफाइड इनटू स्मॉल ग्रुप्स. अलग अलग कैटेगरी में बाद में प्लांट्स को क्लासिफाई किया जाता है. So how the plants are classified, that we are going to study. Now this kingdom Plantae is classified on the basis of characteristics. Which characteristics? Absence or presence of seeds, कि plant जो है वो seed produce करते हैं कि नहीं करते हैं. Then absence or presence of vascular tissues, plant में vascular tissue है या नहीं है. And on the basis of differentiation of plant body etc. मतलब plant body जो है वो thalloid है कि well differentiated है into root, stem and leaves. Now this kingdom Plantae, it is classified into two groups. Which are the two group? First one is a cryptogam. तो किंगडम Plantae का पहला क्लासिफिकेशन दो ग्रुप में, उसको हम सब किंगडम बोल सकते हैं. तो वो सब किंगडम है क्रिप्टोगैम. क्रिप्टोगैम्स आर मेनली नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. इनको फ्लावर्स नहीं आते हैं. तो इनको फ्लावर्स नहीं आते हैं मतलब सीड्स भी नहीं होती है, सीड्स भी फॉर्म नहीं होती है. So cryptogams are spore producing plant. They are not seed producing because plant do not produce seeds and flowers. So cryptogams are spore producing plant. In the cryptogams, sexual organs are present and reproduction takes place by gametes. But sex organs are concealed or hidden, छुपे हुए होते हैं, वो उतने क्लियर हमको नहीं दिखते हैं. तो क्रिप्टोगैम्स में जो भी गमेट्स होते हैं विच आर रिक्वायर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो हिडन होते हैं, छुपे हुए होते हैं एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज क्रिप्टोगैम्स. दूसरा जो ग्रुप है वो है फेनोरोगैम्स. अब फेनोरोगैम्स मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स. जो प्लांट को फ्लावर्स आते हैं मतलब वो प्लांट सीड प्रोड्यूसिंग भी है. सो फेनोरोगैम्स commonly called as seed producing plants. They produce
स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स विच आर विजिबल। फेनरोस का मतलब होता है विजिबल, सो प्लांट प्रोड्यूस स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स विच आर विजिबल। अब ये जो फेनरोगैम्स है वो सीड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उनको स्पर्मेटोफाइट्स भी कहा जाता है। स्पर्मोस का मतलब होता है सीड, सो फेनरोगैम्स आर आल्सो कॉल्ड एज स्पर्मेटोफाइट्स। सो हियर दिस किंगडम प्लांटी is categorized into two subkingdoms, cryptogams and phanerogams. Cryptogams are spore producing and phanerogams are seed producing. Cryptogams are non-flowering, phanerogams are flowering. Now, cryptogam is further classified as non-vascular and vascular plants. क्रिप्टोगैम को फिर दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कौन से दो ग्रुप? नॉन वैस्कुलर प्लांट्स और वैस्कुलर प्लांट्स। अब कौन से प्लांट को वैस्कुलर प्लांट्स बोला जाता है? प्लांट विच कंटेन वैस्कुलर टिश्यूज। विच आर द वैस्कुलर टिश्यूज? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम is a water conducting tissue and phloem is a food conducting tissue. Xylem and phloem also called as conducting tissue. तो जो प्लांट में जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं है उनको बोला जाता है नॉन वैस्कुलर प्लांट, और जो प्लांट में जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है उनको बोला जाता है वैस्कुलर प्लांट्स। मतलब नॉन वैस्कुलर प्लांट is a primitive feature and vascular plant is a advanced feature. अब फेनरोगैम्स जो है वो कभी भी नॉन वैस्कुलर नहीं होते हैं, दे आर ऑलवेज वैस्कुलर। दैट्स व्हाई इन फेनरोगैम्स ओनली वन कैटेगरी इज देयर, दैट इज ऑल द प्लांट्स आर वैस्कुलर। सो नॉन वैस्कुलर प्लांट इज अ फीचर ऑफ प्रिमिटिव प्लांट्स। ओके, so cryptogams further classified into non-vascular and vascular plants, and phanerogams are classified into vascular plants. अब क्रिप्टोगैम में नॉन वैस्कुलर प्लांट्स कौन से हैं? अब ये आ गई पहली डिवीजन, इसको बोला जाता है डिवीजन। सो इन क्रिप्टोगैम फर्स्ट डिवीजन इज थैलोफाइटा। मतलब प्लांट ग्रुप में अगर हमको पूछा जाए सबसे प्रिमिटिव प्लांट कौन से है, तो तुरंत हमको पता होना चाहिए कि थैलोफाइट्स। थैलोफाइटा इज अ डिवीजन विच इंक्लूड ऑल प्रिमिटिव प्लांट। और यही जो डिवीजन है इसमें जो कुछ प्लांट्स है वो यूनिसेल्युलर है, कुछ प्लांट्स जो एकदम प्रिमिटिव है शुरुआत में जो आए वो यूनिसेल्युलर है, बाकी के मल्टीसेल्युलर है। एंड दिस ग्रुप मेनली इंक्लूड अल्गी जो पानी के अंदर होती है। वी नो लाइफ इज ओरिजिनेटेड इन वाटर। तो यहां पर भी जब प्लांट की शुरुआत हुई है तो इनिशियल प्लांट जो है वो एक्वेटिक है, पानी के अंदर रहने वाले हैं। सो थैलोफाइट्स आर नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। मतलब वो नॉन फ्लावरिंग है, उनके अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं है और वो एक्वेटिक है, दैट इज कॉल्ड थैलोफाइटा। फिर ये जो क्रिप्टोगैम्स है और नॉन वैस्कुलर, उनके अंदर दूसरी डिवीजन जो है वो है ब्रायोफाइटा। सेकंड डिवीजन इज ब्रायोफाइटा। सो हियर ब्रायोफाइटा आर द मेंबर्स जिनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। दे इवॉल्व फ्रॉम थैलोफाइटा। सो ब्रायोफाइट्स ऑल्सो नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम जो नॉन फ्लावरिंग है और नॉन वैस्कुलर भी है। तो ब्रायोफाइटा में फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यूज आर प्रेजेंट। और थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा दोनों की जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है, थैलस लाइक होती है। ब्रायोफाइटा के जो एडवांस्ड मेंबर होते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन दिखाते हैं इनटू रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर एंड लीव्स लाइक स्ट्रक्चर, बट नो क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट पार्ट इन ब्रायोफाइटा ऑल्सो। And bryophytes, as I explained, they are called amphibians of plant kingdom. Okay. Now, which are the vascular cryptogams? Vascular cryptogams are pteridophytes. अब pteridophyta से जो प्लांट्स
शुरू हो गए वो सारे लैंड प्लांट्स है। सो टेरिडोफाइट्स आर वैस्कुलर प्लांट्स, क्योंकि अब वो जमीन के तरफ आ गए हैं। ओके, बट स्टिल दे रिक्वायर moist and cool condition. So if question is asked which are the vascular cryptogams, you should know vascular cryptogams are pteridophytes. Okay, so cryptogams classified into non-vascular, vascular, non-vascular cryptogams are Thallophyta, Bryophyta, and vascular cryptogams are only Pteridophyta. Then phanerogams, which are said to be flowering and seed producing plant. Okay, they are all vascular, क्योंकि वो अब जमीन के ऊपर आ गए हैं, तो जो प्लांट जमीन के ऊपर आ गए हैं उनमें जरूरी है वैस्कुलर टिश्यू होना, जाइलम और फ्लोएम उनमें प्रेजेंट होना मस्ट है। सो जिम्नोस्पर्म, ओके, वैस्कुलर प्लांट विच आर फैनरोगैम। जिम्नोस्पर्म में सीड्स फॉर्म होती है लेकिन फ्रूट फॉर्म नहीं होते हैं, बिकॉज देयर ओव्यूल्स आर नेकेड। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनके ओव्यूल्स जो है वो नेकेड होती है, उनमें ओवरी फॉर्म नहीं होती है। दैट्स वाई इन जिम्नोस्पर्म सीड्स आर नेकेड। फिर फैनरोगैम का दूसरा जो डिवीजन है दैट इज एंजियोस्पर्म। सो एंजियोस्पर्म आर हाईली इवॉल्व्ड एंड वेल अडॉप्टेड लैंड प्लांट। अगर पूछा जाता है विच आर द प्रिमिटिव प्लांट, तो हमारा आंसर होगा थैलोफाइट्स, एंड विच आर द एडवांस एंड वेल अडॉप्टेड लैंड प्लांट, तो हमारा आंसर होगा एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म हाईली डेवलप्ड, हाईली इवॉल्व्ड प्लांट्स है। एंजियोस्पर्म में फ्रूट्स फॉर्म होते हैं और सीड्स हमेशा फ्रूट के अंदर होती है। हम अलग अलग टाइप के फ्रूट्स हमने देखे हैं, मैंगो है, एप्पल है, ओके, कस्टर्ड एप्पल है। तो सारे जो फ्रूट्स हैं उनमें जो सीड्स होती है वो फ्रूट के अंदर होती है, क्योंकि एंजियोस्पर्म में ओवरी फॉर्म होती है और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में फ्रूट फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ सीड्स तैयार होती है। बट इन एंजियोस्पर्म along with the seed formation of fruit, or seeds are always enclosed inside the fruit wall. तो किंगडम प्लांटी की ये 5 डिवीजन है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। नाउ दिस ग्रुप एंजियोस्पर्म is further divided into 2 classes. First is a dicotyledony and second class is a monocotyledony, dicot and monocot. तो डाइकॉट मतलब एम्ब्रियो में 2 कॉटलीडॉन्स होना। जैसे हम पी, ग्राउंडनट, ग्राम, उनके जब सीड्स देखते हैं, उनको ओपन करते हैं, इट मे डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाल्व्स। मतलब जो सीड के एम्ब्रियो में 2 कॉटलीडॉन्स होते हैं, दैट सीड इज कॉल्ड डाइकॉट, और जो सीड प्रोड्यूस करने वाले प्लांट है उनको बोला जाता है डाइकॉट प्लांट। नाउ इन मोनोकॉट देयर इज अ सिंगल कॉटलीडॉन। वी नो मेज, व्हीट, राइस, है ना, जवारी, जवार। सो इन दैट प्लांट्स ओनली in the embryo only 1 cotyledon is there. So angiosperm further classified into 2 classes, dicot and monocot. Now after the classification we have to study each and every division of kingdom Plantae in detail. कि थैलोफाइटा क्या है, इसके अंदर कौन से मेंबर्स आते हैं, फिर ब्रायोफाइट्स क्या है, टेरिडोफाइट में हमको क्या पढ़ना है, what are the special features of gymnosperm, angiosperm, their examples, and in angiosperm we have to study 2 classes, dicot and monocot. So we are going to start with the first division of kingdom Plantae, that is Thallophyta, because it is most primitive kingdom. Now division Thallophyta. ये डिवीजन है नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम का। दिस डिवीजन इज मेनली रिप्रेजेंटेड बाय अलगी। जो अलगी आती है
उनको ये डिवीजन में इंक्लूड किया गया है। और अलगी हमको पता है पानी में होती है, मोस्टली एक्वेटिक, एंड एक्वेटिक अलगी ग्रो इन मराइन और फ्रेश वॉटर। समुद्राचं पाणी, नदीचं पाणी दोन्ही ठिकाणी अलगी आढळतात. मग या अलगीचा फॉर्म कसा असतो? दे मे बी स्मॉल, यूनिसेल्युलर, माइक्रोस्कोपिक. आई एक्सप्लेन यू कि थैलोफाइटा के अंदर कुछ मेंबर्स है वो ही यूनिसेल्युलर है और बाकी के जो भी मेंबर्स प्लांटी के अंदर आते हैं ऑल दे आर मल्टीसेल्युलर. तो थैलोफाइटा में जो मेंबर्स आते हैं दे आर स्मॉल, माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेल्युलर लाइक क्लोरेला. यहां पर ये जो अलगी है ये क्लोरेला है, सिंगल सेल्ड यूनिसेल्युलर. एंड हियर द सेल्स आर नॉन मोटाइल, उनको कोई लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं है तो ये नॉन मोटाइल है एंड एग्जाम्पल इज अ क्लोरेला. लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे हैं कि जो यूनिसेल्युलर है, माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन वो कैसे है? मोटाइल है. दिस इज अ क्लैमाइडोमोनास. यहां देखो इसको, ये फ्लैजेला दिख रहे हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं यहाँ पर. सो दीज आर द फ्लैजेला एंड बाय मीन्स ऑफ दिस फ्लैजेला it may locomote. So here this chlorella is a unicellular, microscopic, non-motile algae, and this Chlamydomonas is again small, unicellular, microscopic but motile algae. फिर कुछ जो फॉर्म होते हैं अब वो मल्टीसेल्युलर है. ओके, सो व्हेन दे आर मल्टीसेल्युलर दे मे बी फिलामेंटस, मतलब धागे के जैसे होते, तंतु के जैसे होते. हियर यू मे सी, ये जो है अलगी ये धागे के जैसे दिख रही है, तंतु के जैसे दिख रही है, इसको बोला जाता है फिलामेंटस. ये मल्टीसेल्युलर है. सो दिस इज अ मल्टीसेल्युलर फॉर्म. इट इज फिलामेंटस बट फिलामेंट्स आर अनब्रांच. ये फिलामेंट को कुछ हमको ब्रांचिंग नहीं दिख रहा है, सीधी सीधी फिलामेंट्स है, नो ब्रांचिंग. एंड दिस इज स्पाइरोगायरा, हमने पढ़ा है, दिस इज स्पाइरोगायरा. सो इट इज मल्टीसेल्युलर, फिलामेंटस बट फिलामेंट्स आर अनब्रांच. दिस इज ऑल्सो फिलामेंटस, ये भी फिलामेंटस है लेकिन इसकी फिलामेंट जो है वो ब्रांच्ड है. डिफरेंस समझ में आ रहा है? सो दिस इज अ कैरा. दिस इज मल्टीसेल्युलर, ब्रांच्ड, फिलामेंटस और इसकी फिलामेंट को ब्रांचिंग है. इट्स एग्जाम्पल इज अ कैरा. सो इट ऑकर इन डिफरेंट फॉर्म. फिर ये जो अलगल सेल होती है उनको सेल वॉल होती है एंड दैट सेल वॉल कंटेन्स आइदर पॉलीसेकेराइड लाइक सेल्यूलोज, ग्लूकोज और वेराइटी ऑफ प्रोटीन्स और बोथ. जैसे हम आगे आगे इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते जाएंगे ये हमको और क्लियर होते जाएगा कि अलगल सेल वॉल जो है इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड लाइक सेल्यूलोज, ग्लूकोज और वेराइटी ऑफ प्रोटीन्स और बोथ. फिर इनमें जो रिजर्व फूड होता है, जो भी फूड होता है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड इट्स अदर फॉर्म. तो सेल के अंदर जो भी रिजर्व फूड होता है वो मेनली स्टार्च के फॉर्म में होते हैं या फिर स्टार्च के कुछ अदर फॉर्म में स्टोर किया जाता है. In algae, there is a reproduction and that reproduction takes place by all the three methods: vegetative, asexual and sexual. तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव भी है, असेक्सुअल भी है और सेक्सुअल भी है. इन द लाइफ साइकिल phenomenon is there which is called alternation of generation. मतलब लाइफ साइकिल में दो जनरेशन होती है, स्पोरोफिटिक एंड गमेटोफिटिक. वो दोनों अल्टरनेटली ऑकर होते हैं सक्सेसफुली, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. और लाइफ साइकिल में ये जो दो जनरेशंस होती है, वन इज हैप्लॉइड, सेकंड वन इज अ डिप्लॉइड. तो इन लाइफ साइकिल ऑफ थैलोफाइट haploid phase is dominant and diploid phase is reduced. Okay, algae are classified on the basis of pigments like chlorophyll,
ज़ंतोफिल एंड फाइकोबिलिन। मतलब आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ थैलोफाइट्स और क्लासिफिकेशन ऑफ अलगी इनटू 3 डिफरेंट क्लासेस।